गुड मॉर्निंग बीसीए स्टूडेंट्स, राइट। अब हम लोग बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 4th यूनिट है। हमने वर्चुअल बेस क्लास कर लिया है, हमने पॉइंटर्स कर लिया है, हमने अब जो कंसेप्ट करना है दैट इज जस्ट अ इम्प्लीमेंटेशन, कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शंस होता है, राइट। सो वी स्टार्ट विद पहले वर्चुअल फंक्शंस होता क्या है, व्हाई, what are virtual functions and why we use them, right? When we declare a function as virtual in a class, all the subclass that override this function have their function implementation as virtual by default, whether they mark it virtual or not, right? If base class function is not declared as virtual, then even though we have the parent class pointer pointing to the instance of the child class, the parent class version of the function will be invoked. इस लाइंस का बहुत क्लियर मतलब है, पहले तो हम वर्चुअल कीवर्ड प्रीफिक्स करेंगे बेस क्लास में। नाउ द वर्चुअल फंक्शन जो है, वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या है कि हमने बेस क्लास में उसको डिफाइन कर दिया एंड इट कैन बी रीडिफाइंड इन द सब क्लास, राइट। हम वर्चुअल कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हम उस फंक्शन की रीडेफिनेशन कर सकते हैं। मेक श्योर सिग्नेचर विल रिमेन द सेम। इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिग्नेचर क्या होता है। सिग्नेचर शुड रिमेन द सेम, दैट मीन्स नेम ऑफ द फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स विल रिमेन द सेम। To let the compiler, why we declare our function virtual, so that the compiler को पता चल जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ना कि पॉइंटर अभी हम बनाएंगे, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी लेट, decision will be delayed till the runtime. So virtual keyword will inform the compiler that the call to this function needs to be resolved at runtime. That means we'll follow the concept of late binding, so that the object type is determined and the correct version of the function is called. तो हम उस correct version को choose करने के लिए हम उस binding को late कर देंगे till the runtime, right? Now we'll follow the concept of virtual functions. Virtual functions are used to achieve runtime polymorphism, right? तो हमें runtime polymorphism का concept अगर implement करना है तो हमें उस function को virtual बनाना पड़ेगा. Next is हमें virtual बनाने के लिए क्या करना है? We have to precede the function by a virtual keyword. The function in the base class is declared as virtual using the keyword virtual preceding its normal declaration. तो base class के function की normal declaration से पहले हम virtual keyword लगा देंगे. When a function is made virtual, this is a very important line, right? जब भी हम virtual बना देते हैं function को, C++ determines which function to use at runtime based on the type of the object pointed to the by the base pointer, ठीक है, rather than the type of the pointer. मतलब decision टाइप ऑफ द पॉइंटर पे नहीं होगा, उसकी वैल्यू पे होगा। मतलब जो वो एड्रेस होल्ड कर रहा होगा उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। Thus by making the base pointer to point different objects we can execute different versions of the virtual function. Make sure जैसे ही हम कीवर्ड वर्चुअल डिक्लेयर कर देंगे बिफोर द बेस क्लास, हमारा पॉइंटर का डिसीजन बेस्ड होगा ऑन दी वैल्यू ऑफ द पॉइंटर, जो एड्रेस वो होल्ड कर रहेगा उसके बेसिस पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। अगर वो डिराइव्ड क्लास का एड्रेस होल्ड कर रहा है तो डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अगर वो बेस क्लास का एड्रेस होल्ड कर रहा है तो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर सपोज वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाया और बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का फंक्शन सेम है तो बेस पॉइंटर हैज नो नॉलेज अबाउट द डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा, right? If you are not declaring a virtual keyword before the base class and you are redefining it in the derived class, तो base class के pointer के पास कोई knowledge नहीं है derived class की और base class का function ही call होगा, right? So runtime polymorphism is achieved only when a virtual function is accessed through a pointer. तो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होता है? जब वर्चुअल फंक्शन एक्सेस होगा विद द हेल्प ऑफ बेस पॉइंटर, ठीक है। और
जब भी ये इम्प्लीमेंटेशन होगा विल ऑलवेज यूज इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हमारे ये तीन चीजें हमें क्लियर हो गई हैं अब तक कि हमें ये तीन चीजें यूज करेंगे तभी हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट वर्क करेगा, राइट। Next is virtual functions. A virtual function is a member function which is declared within the base class and is redefined. और इसी word को हम use करते हैं overriding, ठीक है। overridden means कि हम उसकी redefinition दे रहे हैं derived class में। By the derived class, when you refer to a derived class object using a pointer or a reference to a base class, you can call a virtual function for that object and execute the derived class version of the function, ठीक है। तो अगर आपको derived class version उस फंक्शन की यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एड्रेस डालना है उस बेस पॉइंटर के अंदर, राइट। अभी हम आगे सीखेंगे कैसे डालते हैं। वर्चुअल फंक्शंस एंश्योर दैट द करेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ रेफरेंस used for function call, ठीक है। रिगार्डलेस कि आपका पॉइंटर किस टाइप का है वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। दे आर मेनली यूज टू अचीव द कंसेप्ट ऑफ रन टाइम polymorphism. Functions are declared with a virtual keyword in the base class. The resolving of function call is done at runtime. That's why we call it runtime polymorphism. So there are basic rules that we should follow in virtual functions. When virtual functions are created for implementing late binding, we should observe some basic rules that satisfy compiler requirements. First is the virtual function must be the members of some class. कि virtual function किसी member, data member function होना चाहिए किसी class का. They cannot be static members. They are accessed by ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स, ऑब्जेक्ट पॉइंटर, बेस पॉइंटर हमें बनाना पड़ेगा। हमने पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ा है, हमें वो पॉइंटर बनाना पड़ेगा। A virtual function can be a friend of another class. A virtual function in the base class must be defined, even though it may not be used. ठीक है, बेस क्लास में डिफाइन करना जरूरी है, अगर हम उसको यूज भी नहीं करते इट्स ओके। द प्रोटोटाइप ऑफ द बेस क्लास वर्जन ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन एंड all the versions in the derived classes must be identical. मतलब मैंने यही चीज बोली थी, सिग्नेचर, प्रोटोटाइप, डिफरेंट वर्ड्स हैं जो सेम वे से यूज हो सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, ये जो चीजें हैं ये सेम होती हैं। जबकि ओवरलोडिंग में जब हम बात करते थे तो फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन डिक्लेरेशन में चेंज होता था, नंबर ऑर्डर टाइप में इसमें नहीं होता, राइट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। What is the difference between overloading and overriding? We cannot have virtual constructors, but we can have virtual destructor. If a virtual function is defined in the base class, it need not be necessarily in the next object, right? अगर function base class में defined है, it need not be necessarily in the next object. मतलब next ही class में redefined हो वो जरूरी नहीं, right? This is a simple एग्जाम्पल। हमने एक क्लास एम्प्लॉय बनाई, उसमें एक वर्चुअल कीवर्ड बना दिया नेट सैलरी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट बनाई, क्लास कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इनहेरिटेड एम्प्लॉय क्लास, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिराइव्ड क्लास। कॉन्ट्रैक्ट क्लास का ये देखो फंक्शन डेफिनेशन सेम है, राइट, राइट। आप ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाई, इसमें भी डिफाइन कर दिया, राइट। वी कैन डिफाइन बट द सिग्नेचर इज सेम। यहाँ पे कहीं पे भी इनपुट नहीं आ रहा, एक बस बेस क्लास में वर्चुअल लिखना जरूरी है, बाकी तो री-इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेस पॉइंटर? Runtime polymorphism is achieved with the help of a pointer known as a base class type, जो base class का pointer होएगा, right? Base pointer can point to the object of the base class as well as the objects of the derived class. Point कर सकता है base class के भी और derived class के भी point कर सकता है, make sure. Late binding or runtime is done in accordance with the content of the pointer, and early binding is done according to the type of the pointer. I repeat, in लेट बाइंडिंग का कंटेंट मतलब वो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, राइट। अगर फंक्शन वर्चुअल है तो हम डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द
कंटेंट इन द पॉइंटर। अगर वर्चुअल नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द पॉइंटर। थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन मैंने लिखा है नेक्स्ट जो एग्जांपल का है, फर्स्ट आई जस्ट गो टू द एग्जांपल। ये एग्जांपल डिक्लेयर, ये तुम्हें समझ आएगा कैसे। ये देखो, एक बेस क्लास है, उसके अंदर वर्चुअल है, राइट? प्रिंट इज अ वर्चुअल while show is not virtual। सेम वे डिराइव्ड क्लास है, दोनों पब्लिक है, प्रिंट भी और शो भी, ठीक है? दोनों की देखो डेफिनेशन सेम है। नाउ मेन में हमने ये पॉइंटर बनाया है, दिस इज अ बेस पॉइंटर, ठीक है? हमने एक डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया डी। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव रेफरेंस डाल दिया हमने बेस क्लास पॉइंटर में। नाउ when we are calling print, virtual function is binded at run time। समझ आया? क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट के साथ वर्चुअल लिखा है, दैट मीन्स डिराइव्ड क्लास की कॉपी कॉल होएगी। समझ आया? बट अगर हमने वर्चुअल नहीं लगाया है, ठीक है, जब हमने वर्चुअल नहीं लगाया है तो शो में बेस क्लास की ही कॉपी कॉल होगी, राइट? जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड यू डेफिनेटली नो द डिफरेंस कि ये कैसे वर्क करता है। You have to execute this program. The code, just you have to copy paste the code and execute it. You'll understand the full concept of virtual keyword. ठीक है? Again, the primary question is difference between overloading and overriding, right? We'll solve these questions in the part of assignments also, right? So up हमने पढ़ लिया ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का डिफरेंस आता है, वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं हमें ये समझ आ गया। अब आया कंसेप्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन का। अगर मेरे को कोई चीज कंपलसरी करनी है, समझ आया? कोई भी चीज अगर मुझे कंपलसरी करनी है कि मेरे से कोई डिराइव्ड क्लास हो तो उसको फॉलो करना ही करना पड़े, राइट? उस केस में हम उस फंक्शन को प्योर वर्चुअल बनाते हैं। कुछ कंसेप्ट मैं थ्योरी बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं समझा रही हूँ। वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल में क्या डिफरेंस है? वर्चुअल फंक्शन इज रीडिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास। अगर डिराइव्ड क्लास नहीं रीडिफाइन करेगी तो बेस क्लास का वर्जन यूज हो जाएगा। बट इन प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर हम किसी क्लास को कंपलसरी कह देते हैं कि वो डिफाइन करे ही करे उस फॉर्मेट में, राइट? तब हम उस क्लास के फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देंगे, राइट? क्लियर है? A pure virtual function in C++ is a virtual function for which we do not have implementation. We only declare it. ठीक है? हमने उसकी implementation नहीं लिखी है बेस क्लास में। A pure virtual function is declared by assigning 0 in the declaration. कैसे असाइन करते हैं अभी मैं सिंटेक्स बताऊंगी। हम 0 लिखेंगे, अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ 0 लिखा हुआ है तो समझ लो कि वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। Using a pure virtual function has two main consequences. First, any class with one or more pure virtual functions becomes an abstract base class, which means it cannot be instantiated, right? Instantiated का मतलब क्या है कि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है? A pure virtual function is implemented by classes which are derived from a abstract class. तो कौन से प्योर वर्चुअल फंक्शन कहां पे लिखता है? जहां हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की कोशिश करते हैं और हम कंपलसरी चाहते हैं कि हर डिराइव्ड क्लास उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करे। सेकंड, द डिराइव्ड क्लास आर फोर्स्ड, सी मैंने वो जो लाइंस रिपीट करी, आर फोर्स्ड टू रीडिफाइन दीज फंक्शंस बिफोर दे कैन बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब अगर उनको अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उनको उस फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा। दिस हेल्प्स ensure the derived classes to do not forget to redefine the functions that the base class is expecting them to। ये किस लिए? कि अगर बेस क्लास चाहती है कि ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए, then it is expecting कि वो बने, अदरवाइज उनका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, राइट? दैट मीन्स अगर वो रिडिफाइन करेंगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं रिडिफाइन करेंगी तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रह जाएंगी, राइट? वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास रह जाएगी। If we do not override the pure virtual function in the derived class also becomes the abstract class. Is that clear? Right? Basically, a pure virtual function can also be said as do nothing function. कुछ भी नहीं करता वो। Such functions are called as
pure virtual functions. A class containing pure virtual function cannot be used to declare any objects of its own. First thing, such classes are called abstract classes. The main objective of abstract base class is to provide some traits to the derived class to create a base pointer required for achieving runtime polymorphism. ठीक है, तो वो बेस पॉइंटर बनाएंगे जो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेगा, राइट? सो व्हाट इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन? अ फंक्शन विदाउट अ बॉडी इज क्रिएटेड बाय एडिंग अ नोटेशन इक्वल टू 0 टू द वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन. सिंपल, इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दिया तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया, राइट? सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गई? वो क्लास जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को इनहेरिट कर रखा है या उसने डिक्लेयर कर रखा है प्योर वर्चुअल फंक्शन को. तो वो क्लास अगर वो डिराइव भी है तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कराएगी. अगर वो बेस है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कहलाएगी, राइट? Is a class containing one or more pure virtual function is used as a base class for deriving specific classes of same kind. We cannot create the object of that class, right? We cannot create the object of that class. सी जब आप इस एग्जाम्पल को रन कर लोगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट? इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? क्योंकि आपको कुछ जब आप ट्राई करोगे तभी आपको क्लियर होएगा. अच्छा मैम ये प्रॉब्लम आ रही है. कई बार ऐसा करो कि बेस पॉइंटर की वैल्यू चेंज करके देखो, कंटेंट चेंज करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, राइट? सो we'll move with the next unit. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में we'll move with the next unit जो कि फाइल्स है, राइट? आई होप अभी तक के टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स we'll discuss with the past questions also. If you have any doubts you can definitely ask me anytime. Thank you. Have a nice day.